दरअसल एक चिट्ठी लिखी गई है, ओपन लेटर। ये चिट्ठी लिखी गई है 14 इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाड़ियों ने, भूतपूर्व खिलाड़ी जो अपने अपने देश के या तो कप्तान टेस्ट टीम के या वनडे टीम्स के रह चुके हैं। उन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है इमरान खान साहब के लिए। जी हां, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग लेजेंड इमरान खान साहब, कप्तान के नाम से भारत में बहुत लोग हम बुलाते हैं, कप्तान, और क्योंकि कैप्टन रह चुके हैं, और एक बड़े असरदार प्लेयर, एक लेजेंडरी प्लेयर इमरान खान साहब, लिविंग लेजेंड आप कह सकते हैं क्रिकेट के मामले में। उनकी सियासत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एज अ क्रिकेटिंग पर्सनालिटी दुनिया में इमरान खान साहब एक किंगवदंती बन चुके हैं। उन्होंने जनरेशंस ऑफ प्लेयर्स अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने इंस्पायर किया। 2023 से जेल में बंद हैं। अब उनकी ताईद में कुछ साबिक क्रिकेट कैप्टन्स, उन्हीं के जैसे कैप्टन्स अपने अपने देशों के टीम्स के रह चुके हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। इट्स एन अपील, इट्स एन ओपन लेटर। किन्होंने लिखी है मैं नाम गिनवा देता हूं। माइक एथरटन, इंग्लैंड टीम के कप्तान साबिक। एलन बॉर्डर साहब, साबिक ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन। माइक ब्रियरली, ग्रेग चैपल, इयन चैपल, सुनील गावस्कर, कपिल देव, डेविड गावा, नासिर हुसैन, सर क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ, जॉन राइट, बेलिंडा क्लार्क, किम ह्यूज। ये क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन टीम की बेलिंडा क्लार्क थी, और भी आप जाने माने नाम मैंने गिनवा दिए। ये सब ने, और हिंदुस्तान के कपिल देव साहब और सुनील गावस्कर साहब ने ये जॉइंट अपील किया है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। We, the undersigned former captains of our national cricket teams, write with deep concern regarding the reported treatment and incarceration conditions of Imran Khan, the distinguished former captain of Pakistan and a legendary figure in world cricket. ये चिट्ठी आज जारी हुई है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूं। Imran Khan's contributions to the game are universally admired. As captain, he led Pakistan to their historic 1992 Cricket World Cup victory, a triumph built on skill, resilience, leadership, and sportsmanship that inspired generations across borders. Many of us competed against him. बहुतों ने उनके खिलाफ compete किया, shared the field with him, or grew up idolizing his all-round brilliance, charisma, and competitive spirit. He remains one of the finest all-rounders and captains the sport has ever seen, earning respect from players, fans, and administrators alike. Beyond cricket, Imran Khan served as Prime Minister of Pakistan, leading his nation during a challenging period. Regardless of political perspectives, he holds the honor of having been democratically elected to the highest office in his country. Recent reports concerning his health, particularly the alarming deterioration of his vision while in custody and the conditions of his imprisonment over the past 2.5 years, have caused us profound concern. इमरान खान साहब के बेटे ने कहा है कि उनकी दाएं आंख की रोशनी 85% घट गई है। 85% विजन घट गया है दाएं आंख में। टाइम पे उनको मेडिकेशन नहीं दी जा रही है, उनके ब्लड रिपोर्ट्स तक नहीं करने दिए जा रहे हैं, महीनों लगाए जा रहे हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया उनको। ऐसी क्या आफत आ गई भाई कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना पड़ रहा है। आगे लिखते हैं, एज फेलो क्रिकेटर्स
who understand the values of fair play, honor, and respect that transcend the boundary rope, we believe that a person of Imran Khan's stature deserves to be treated with the dignity and basic human consideration befitting a former national leader and a global sporting icon. We respectfully urge the government of Pakistan to ensure that Imran Khan receives immediate, adequate, and ongoing medical attention from qualified specialists of his choosing to address his reported health issues. Humane and dignified conditions of detention in line with international standards, including regular visits by close family members. Fair and transparent access to legal processes without undue delay or hindrance. Cricket has long been a bridge between nations. Our shared history on the field reminds us that rivalry ends when the stumps are drawn and respect endures. Imran Khan embodied that spirit throughout his career. We call on authorities to honor it now by upholding the principles of decency and justice. This appeal is made in a spirit of sportsmanship and common humanity without prejudice to any legal proceedings. नाम मैंने आपको गिनवा दिए। दो ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स तो हैं जो बड़े दिलेर हैं, कपिल देव साहब और सुनील गावस्कर साहब। सुनील गावस्कर साहब के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है या फिर शायद आपने सुनी हो कभी। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कराने के बाद जो दंगे और फसाद हुए पूरे भारत में, बॉम्बे, तत्कालीन बॉम्बे आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे शहर में उनके घर के सामने कुछ दंगई एक ऐसे ही मुसलमान व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहे थे तो हाथ में बेसबॉल बैट लेकर के सुनील गावस्कर बाहर निकल गए उनसे लड़ने के लिए, इस इंसान की जान बचाने के लिए। ये सुनील गावस्कर और कपिल देव साहब, क्या ही बताएं उनके बारे में भी। ये जो आए दिन ये नफरती चीजें होती रहती हैं उस पर टिप्पणी देकर के बड़े अनपॉपुलर हो गए हैं कपिल देव साहब। सरकार से भी कोल्ड शोल्डर मिला है हाल में। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जब हुए हैं, प्लेयर्स हाथ नहीं मिलाते हैं, तब बड़े खुले लफ्जों में कपिल देव साहब ने आकर के मीडिया के सामने बोल दिया कि ये दरअसल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को कमजोर करता है। ये जो खेल खेला जा रहा है राष्ट्रभक्ति के नाम पर, अपने इंडियन टीम के आज के लोगों की हरकतों के खिलाफ बात कर दिए तो फिर अब उनको भी देशद्रोही है, ये है, वगैरह वगैरह बोलने शुरू हो गए हैं। भक्तों की टोली जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है। उसके बावजूद इन दोनों क्रिकेटर्स ने बड़ी दिलेरी का काम किया है इस चिट्ठी में अपना नाम डाल के। मैं उम्मीद करता कि और भी इंडिया के क्रिकेट कैप्टन इसमें अपना नाम जोड़ते हैं। सौरभ गांगुली साहब, भाई बंगाल टाइगर के नाम से आपको नवाजा गया है, थोड़ा टाइगर वाला स्पिरिट तो दिखाते, लिखते इसमें जाकर के। चलिए ठीक है, आपने खेला नहीं है इमरान खान के साथ, लेकिन फिर भी एज एन इंस्पिरेशनल क्रिकेटर आपकी ये जिम्मेदारी तो बनती है। सचिन तेंदुलकर का नाम क्यों नहीं है? आप भी तो क्रिकेटिंग कैप्टन रहे हैं। लेकिन फिर हिम्मत की बात जब आती है, तेंदुलकर साहब उसके लिए जाने नहीं जाते हैं। बड़ा ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल अपना पूरा करियर उनका रहा है, कोई टिप्पणी कुछ नहीं देते हैं। हां, जब सरकार के हक में मास ट्वीट्स करने पड़ जाए, जो एक प्रोफॉर्मा ट्वीट्स होता है जिसमें सरकार की वाहवाही करने में जो लोग सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाकर के पोस्ट डालते हैं, उसमें लेकिन अव्वल आते हैं सचिन तेंदुलकर साहब। उनका नाम भी इसमें नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी साहब का भी नहीं है। मुझे पता नहीं उनको मालूम था कि नहीं ऐसी कोई चिट्ठी आने वाली है, जारी हो रही है। आज से कुछ साल पहले इमरान खान साहब, उनके हक में नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने कुछ बोल दिया था तो बड़ा विवाद हो गया था। तो उससे बचने के लिए बहुत लोगों ने इमरान खान साहब के इनॉग्रेशन में बुलाया तो गया था, बहुत लोगों को गए नहीं थे। लेकिन चलिए ठीक है, वो मैं समझ रहा था, वो समझने वाली बात है, क्योंकि वो चलिए एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट था, उसमें क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा लोग जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन फिर भी ऐसे वक्त पे जब उनको मदद की ज़रूरत है, इन पुराने उनके मुखालिफिन का इकट्ठे ऐसे आ जाना, उनके हक में एक चिट्ठी लिखना,
पाकिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि प्लीज़ ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस बहाल रखें। हम लीगल मामलों में दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ही नीड्स हेल्प, हिज हेल्थ इज़ नॉट वेल। वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी मदद कीजिए प्लीज़। बड़े शर्म की बात है वैसे पाकिस्तान की सरकार के लिए कि उनका सबसे पॉपुलर लीडर आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। अनगिनत इल्जामात लग गए हैं, कुछ में तो बरी हो गए हैं, कुछ में नहीं। 17-17 सालों की कैद हुई है उनको और उनकी बेगम को, बुशरा बीबी। पाकिस्तान टीम के पुराने क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी मुहिम अब खड़ी नहीं हो पाई है। चलिए, वो उसके भी खतरे हैं अलग। पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किया तो फिर उन पे लाठियां चली। लेकिन ये आप देखिए कि पूरे साउथ एशिया में हमारी हालत क्या हो गई है दोस्तों। एक ओर पे तो हम अपनी तहजीब के, अपने अदब की डींगे मारते रहते हैं, दुनिया भर में हम ढिंढोरा पीटते हैं कि हम तो कल्चरली इतने अच्छे हैं, हमारे जैसा कल्चर तो कोई है ही नहीं, इतनी डाइवर्सिटी, इतने रंग। लेकिन फिर इंसानी हुकूक की बात आती है तो फिर वहीं पे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। इमरान खान के साथ जो सलूक किया गया है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई कोई कर नहीं सकता है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि फौज की लाइन को नहीं फॉलो करेंगे। अमेरिका के जेर साए से निकल के चीन और रूस के साथ साझेदारी निभाने की कोशिश कर रहे थे, नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो अंदर डाल दिए गए। कहा जा रहा है बहुत सारे और भी वजूहात हैं, आई एम श्योर, जो पाकिस्तानी हैं उनको ज़्यादा मालूम होगा हमसे। लेकिन कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि इस तरह से जेल में बंद करके रखा गया है और अब फॉर्मर क्रिकेटर्स को चिट्ठी लिखनी पड़ गई है। मुझे अभी भी याद है बचपन में बॉलिंग अगर करना होता था, मैं तो उस दौर का था जब हमने इमरान खान का वो लास्ट टर्म देखा, 92 वर्ल्ड कप। उसके बाद तो चलिए उन्होंने छोड़ ही दिया, लेकिन वो पीक इमरान खान तो फिर भी नहीं थे। लेट 80s का थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, क्योंकि वो पामोलिव वगैरह के एड्स आते थे जिसमें इमरान खान साहब थे, बड़े आइकॉन थे। मुझे अभी भी याद है स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन में एक पोस्टर आता था बीच में, उसमें इमरान खान साहब का एक पोस्टर मैंने अपने दरवाजे पे लगा के रखा हुआ था मेरे रूम में। बॉलिंग करनी है, वो इमरान खान साहब का एक्शन हर कोई कॉपी करने लगता था। उसके बाद फिर वकार यूनुस आए तो लड़कों में बड़ा क्रेज़ हुआ कि वह कितना फास्ट बॉलर है, वकार यूनुस को कॉपी करने लगे। वसीम अकरम को, क्योंकि लेफ्ट हैंडर हर कोई नहीं होता था, तो फिर कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन ये आइकॉनिक क्रिकेटर्स रहे हैं हम सब के लिए, इमरान खान खास करके। तो बड़े शर्म की बात है पाकिस्तान की सरकार के लिए कि ये सलूक किया जा रहा है आपके एक नेशनल हीरो के साथ। वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्यादे के तौर पे शायद नहीं रहना चाह रहे थे। अब बहुत ज़्यादा सियासी, उनकी सियासत को लेकर के मुझे भी कुछ चीज़ों पे एतराज़ रहा है, ख़ास करके वो टीटीपी के मामले में ऐसा लगता है कि कमज़ोर पड़ जाते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में बात करते वक्त। तो ये मेरी एक शिकायत ज़रूर रही है उनसे, लेकिन अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादा इंडिया में उनको एज अ क्रिकेटर पसंद करते हैं। दोनों देशों के दरमियान जो भी हुआ है उसके बावजूद इमरान खान, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये आइकॉनिक क्रिकेटर्स हैं एक पुराने जनरेशन के, जिन लोगों ने देखा हुआ है ज़हीर अब्बास, मुदस्सर नज़र, ये इंडिया में बहुत लोग एज आइकॉन्स देखते थे। इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे, क्योंकि निहायत हैंडसम हुआ करते थे अपने टाइम में, और कहा जाता है कि हमारे वहाँ तो औरतें एकदम दीवानी हो गई थी। जो भी है, वो क्रेज़ तो रहता है चलिए स्टार्स के लिए, लेकिन फिर भी एज अ क्रिकेटर मैं उनको ज़्यादा याद रखता हूँ, क्योंकि वो, हम, मुझे अभी भी याद है बॉलिंग एक्शन कॉपी करने के लिए ही पहले तो रिप्लेस भी नहीं होते थे टीवी पे,
कितनी बार इंतज़ार करना पड़ता था कि स्पॉटलाइट करके एक प्रोग्राम होता था, वो आएगा और इमरान खान साहब का एक बॉलिंग का वीडियो होगा। टॉप 5 विकेट्स होते थे उसमें। उसमें एक तो इमरान खान के होते ही थे, तो वो हम इंतज़ार करते थे कि कब वो आएगा और हम देख करके थोड़ा-सा कॉपी कर सकें। या फिर जो टेस्ट मैचेस आमतौर पे बोरिंग लगते थे, लेकिन फिर बॉलिंग एक्शन कॉपी करने के लिए अच्छा उसमें एक मौका मिलता था। तो ये चिट्ठी लिखी गई है उनकी रिहाई रिहाई के लिए तो नहीं चलिए, लेकिन बेहतरीन उनको कंडीशंस में रखा जाए, बेहतर कंडीशंस में, इसके लिए एक गुहार ज़रूर लगाई गई है। और फॉर्मर क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल टीम्स के कैप्टन्स रह चुके लोगों ने लिखा है, मुझे खुशी इस बात से है कि मेरे मुल्क के 2 सितारों ने अपना नाम जोड़ा है इस लिस्ट में, और ऐसे लोग, बुलंद किरदार लोग, जिन्होंने अपना नाम जोड़ा है, सुनील गावस्कर और कपिल देव।